विश्व वंदनीय विराट स्वरूपा दादी जानकी जी। ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड परिवार की ओर से प्रथम स्मृति दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अपना परिचय अर्जुन को एवं अन्य भक्त जनों को अनुभव कराने हेतु स्वयं के अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। परिणाम स्वरूप सभी ने उनके इस कर्तव्य युक्त स्वरूप का दर्शन करके उनको स्वीकार किया। इसी प्रमाण हम सर्व की प्यारी दादी जानकी जी ने 104 वर्ष की सक्रिय आयु में करीब 130 देशों का भ्रमण करके लाखों आत्माओं को बाबा का संदेश देकर उन्हें बाबा से प्रत्यक्ष कराया और अन्य विराट कार्य के भी निमित्त बनी और दादी जी विराट स्वरूपा बन गईं। हम सभी भी भाग्यशाली रहे ऐसे विराट स्वरूपा दादी जी के संग कार्य में सहयोगी रहे। दादी कहती थी मुझे दादी करके नहीं चलाओ, मुझे अपनी सखी करके चलाओ। टीचर भी नहीं समझो, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो अंत तक स्टूडेंट रहेंगी। दादी ने सदा ये लक्ष्य रखा कि जब भगवान का कार्य है, जो ज़रूरत है, जिस समय ज़रूरत है, अवश्य ही होगा। बाबा ने कहा है होगा ज़रूर। दादी को 1% उसमें शक्य नहीं होता था, तो भगवान में विश्वास उस आधार पर और दादी की करेज, हिम्मत कभी नहीं हारने वाली, न खुद से न औरों से। Her face was so expressive of all the lovely feelings that she was holding inside. You know, next to God, I would say Daddy Janki's had more of an impact on my life than anybody. The ultimate result of all knowledge is to be completely loving. And that was really Daddy. I would say that she absorbed truth into herself so deeply, but the way it came out was this incredible love for everyone. She always just knew. She knows you. Despite what anyone or anything might be happening to you, she doesn't look at that. She knows your destiny, your future, and she just always looks at the best part of you, and she has this way of pulling it out of you. And it's because of Daddy's vision and Daddy's love why so many lives have become better. Dadi Janki was my advisor, was my boss. Everything that I know, I owe it to Dadi Janki. She guided me, she taught me, she set an example to me. Dadi Janki was not an ordinary person. She was an extraordinary person. I loved Dadi Janki. I miss Dadi Janki desperately. Dadi Janki steered newness, breaking every limit whatsoever you could imagine for yourself. In spite her very impressive credentials, Dadiji remained innocent and humble with a childlike lightness, combined with the wisdom of deepest sage. She kept herself in thorough alignment with God's pure purpose while being with everyone else. And she said that I'd do Baba's service in the whole world. And Daddy would inspire me to always put others in front and to keep opening new places.
not stay still. And this is just a testimony of her ability to see into the future and to give me the spiritual power to make it happen. Whenever I think of her, I remember that initial gaze which transformed the course of my life completely. At the present, you keep your mind connected with God to experience His peace and power and love. Continue your journey of life like this so that you don't miss out your inheritance of peace and love from God. Dadi Janki, for me, is an angel of good wishes and pure feelings. She always had unlimited feelings for all souls in the world. Dadi Janki for me is also an embodiment of generosity. She keeps giving, giving and giving. She don't keep anything for herself. She has left with us the legacy of wisdom and love which we will continue to cherish for the rest of our life. She says, what is money compared to your value? And so in small meetings also, just instilling that great sense of self-respect. And it's not something we are. I mean, Dadi sees that, but then we have to work at it. So I miss Dadi's support a lot. I miss her company. I miss her wisdom a lot. But I'm so happy, so grateful that I've had all this sustenance from Dadi, and I'm doing my best to try and pass on that sustenance to others. दादी जी ने ये मंत्र पक्का किया और कराया 3 बार ओम शांति बोलना। तो एक्सप्लेनेशन जब देती थी कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, तो ये उनके जीवन का दर्शन स्वयं ही हो जाता था। पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, एकता की शक्ति, संगठन की शक्ति। ये दादी ने जैसे कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक स्तंभ हर जगह क्रिएट किया। हम सब ब्राह्मणों की जान दादी जानकी जी, जिन्होंने आज तक शुरू से लेके यज्ञ की स्थापना से लेकर के आज तक अपना तन मन धन समय श्वास और संकल्प सब विश्व की सेवा में लगा दिया। हम सब ब्राह्मणों को सदैव आगे बढ़ाने का उमंग और उत्साह दिया और सारे विश्व के अंदर, विशेष तो विदेश के अंदर बाबा का नाम बाला करके विश्व का पिता ये बाबा का नाम सिद्ध किया। उन्नीस 1947 के विभाजन के पश्चात संस्था, जिसे ओम मंडली के नाम से जाना जाता था, कराची से भारतवर्ष के राजस्थान में स्थित आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई। उसी दौरान एंटी ओम मंडली तथा ओम मंडली से जुड़े काफी सिंधी परिवार पुणे में आकर बसे थे। पुणे, जिसे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी शैक्षिक सुविधाओं के लिए भी प्रसिद्ध है, जिस कारण पुणे को विद्या नगरी भी कहते हैं। इसी विद्या नगरी में जगदम्बा सरस्वती जी ने आकर ईश्वरीय सेवाओं का पौधा लगाया। उस समय क्या हुआ कि बम्बई की तो सेवाएं हुई, उसके बाद मम्मा का, मातेश्वरी का पूना आना हुआ, और जब मातेश्वरी सेवा अर्थ पूना में आई तो कई मास तक मातेश्वरी पूना में रही हुई थी।
मातेश्वरी जी के प्रभावशाली प्रवचनों के कारण संस्था से दूर हुए काफी परिवार फिर से जुड़ने लगे। पुणे की सेवाओं का समाचार सुनकर साकार बाबा ने मधुबन से मातेश्वरी जी को पत्र द्वारा संदेश दिया कि वहां की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष जनक बेटी को रखा जाए। 2 मास के बाद मम्मा का प्रोग्राम बेंगलोर जाने का था, जिसके कारण फिर मम्मा ने जानकी दादी को पूना में रखा। इस प्रकार मातेश्वरी जगदम्बा जी ने पुणे में आध्यात्मिक सेवाओं का पौधा लगाया, जिसको आगे चलकर दादी जानकी जी ने 1958 से लेकर 1974 तक अपनी त्याग, तपस्या और सेवा से वट वृक्ष में परिवर्तित कर दिया। बाबा के आदेशानुसार 1958 में जानकी दादी का पुणे आगमन हुआ। दादी जी ने अपने त्याग तपस्या से अनेक बातों का सामना करते हुए भी एक ईश्वर को अपना साथी बनाकर आध्यात्मिक सेवाओं में वृद्धि की। एक ही रूम में दादी रहती थी, वही दादी का बेडरूम था, वही दादी का किचन था और वही खटिया पर बैठ करके दादी क्लास भी कराती थी। गैलरी से कुछ चीज़ें खाते थे, गंदी चीज़ें, और उसके टुकड़े दादी के कमरे के आगे डाल देते थे, जिसके कारण दादी को नफरत आ जाए। फिर भी दादी उनसे प्रेम से व्यवहार करती थी। समय ऐसा भी आया जब दादी को एक मकान छोड़ना था और आगे कोई मकान किराए पर नहीं मिल रहा था, पर एक बल एक भरोसा रख दादी जी सामान लेकर निकल पड़ी। बैग लेके और निकलने लगे और मेरा भाई ऊपर से पहुंच गया। बोला दादी कहाँ जा रही हो? कहती हमने ये जगह वो हमारे से खाली करवा दी है और हम किधर भी जाएंगे जिधर जगह मिलेगी। तो मेरे भाई ने सूटकेस पकड़ लिया, बोला चलो मेरे घर। मैंने अभी अभी अपना घर बनाया है। तो दादी जानकी को, सुंदरी को, सरला को, तीनों को लेके अपने घर में आ गए। रसोई में खुद ही बनाती थी। हमने उसके हाथ, दादी जानकी के हाथ का 2 महीने खाना खाया और दादी बड़े प्रेम से और टेस्टी खाना बनाती। बात लगभग 1967 की होगी, जब रोड के दूसरी ओर बिल्डर अतुल संगतानी जी पुणे की पहली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मीरा सोसाइटी का निर्माण कर रहे थे। जो गोविंद दादा जो थे, जो यज्ञ के शुरू में थे और बाद में वो पूना में सेट हुए, जानकी दादी ने कहा कि आपने यहाँ पर एक फ्लैट बुक कराया है और मैं समझती हूँ कि यज्ञ की सेवा के लिए, सेंटर के लिए ये स्थान बहुत अच्छा है। दादी जी के कहते ही तुरंत गोविंद दादाजी ने अपना फ्लैट सेवा केंद्र के लिए दे दिया और यहीं से बेहद सेवाओं का आरंभ हुआ। केवल पुणे में ही नहीं, बल्कि कोल्हापुर, सांगली, परभणी, नांदेड़, श्रीरामपुर, राहुरी जैसे अनेक स्थानों पर दादी जी ने सेवाएं बढ़ाईं। महाराष्ट्र से बाहर हैदराबाद तथा गोवा की सेवाओं का बीज भी दादी जी द्वारा ही डाला गया। दादी जी ने आध्यात्मिक शिक्षिका बनकर पुणे में कई बहनों को हर तरह से परिपूर्ण कर आप समान बनाया, जो आगे चल संस्था की बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के निमित्त बनी, जिसमें विशेष संतोष दीदी जी, सरला दीदी जी, प्रेम दीदी जी, सुंदरी बहन जी, कुलदीप दीदी जी भी शामिल हैं। दादी जी की पुणे में इन अविरत आध्यात्मिक सेवाओं को गौरवान्वित करते हुए पुणे महानगर पालिका की ओर से मेयर मोहन सिंह राजपाल जी ने 18 जून 2011 में दादी जी को पुण्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। दादी जी को ही प्रेरणा ही, दादी जी ने कहा कि पुणे वालों ने बहुत पालना ली है मम्मा से, तो इसके कारण पुणे में ही उसके यादगार के रूप में बने। दादी जी के द्वारा ही प्रेरित हुई व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं आदरणीय बालन भाई, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर, जो पुणे की बहुत बड़ी हस्ती, बोला दादी सारी जिम्मेवारी मेरे को दे दो। विशेष उस समय हमारे जगदम्बा भवन के लिए आदरणीय जयंती दीदी का भी बड़ा सहयोग है, उनका भी ध्यान रहा। बीमारी के कारण रमेश भाई आना जाना नहीं कर पाते थे, लेकिन उस समय हमारे आदरणीय हरिलाल भाई जी ने भी बहुत ध्यान रखा और 1.5 साल के अंदर ये मकान पूरा हुआ।
और क्या कमाल कहे दादी जी के संकल्प की। दादी माना सेवा, दादी माना याद, दादी माना गुणों की मूर्ति, दादी माना प्रेरणा, दादी माना उमंग उत्साह, दादी माना शक्ति। उसका फल भी मिल रहा है तो फल भी मिल रहा है। तो जैसे हमारा ये उद्घाटन का प्रोग्राम पूरा हुआ, जो आदरणीय दादी जी के कमल हस्तों से हुआ, 15,000 की संख्या उपस्थित थी। बहुत सुंदर वो भी सीन रही। मम्मा तो मम्मा है, लेकिन हमारी आदरणीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय दादी जी मास्टर मम्मा है। ओम शांति। मैं जब दादी को मिला था बहुत साल पहले, तो इतनी प्योर सोल मुझे दिखी थी। एक आई कुडंट बिलीव इट कि आज की दुनिया में, इस ज़माने में, सोशल मीडिया इंटरनेट के ज़माने में कोई इतनी प्योर, इतनी स्टेबल इंसान भी हैं। इंसान का एक भगवान का अवतार लगी मुझे वो। उनको, जैसे सबको पता ही है कि उनको वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल माइंड का अवार्ड भी मिला था। जैसे लिपटी हो मुस्कानों में दुआ, लेकर चलती थी खुशियों का कारवां। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं एक बार इनसे मिली हूँ और इन्होंने मुझे मधुबन में अमृत पिलाया है। तो व्हेन आई लुक्ड एट हर एंड इनटू हर आईज, तो मुझे पूरा एक स्पाइन में एक शडर आया था। पता नहीं, मतलब आई शिवर्ड, मुझे कुछ हुआ था। तो आई कुड फील द स्ट्रेंथ ऑफ हर पर्सनैलिटी। हालांकि वो हम सबके बीच में हमेशा है, अपने वचनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, आत्मिक रूप से उनकी उपस्थिति हम सभी महसूस करते हैं। हम सिर्फ कोशिश करेंगे कि उनको समेट कर उस कागज तक पहुंचा सकें। जानकी दादी से मुझे बहुत प्यार मिला और दादी ने बहुत प्यार से और बहुत ही आशीष दिया। मैं माउंट आबू गई थी और मैंने वहाँ पे दादी जानकी जी से मिली और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। जैसे ही वो उस शो के दौरान वो बीच में आई, तो 104 साल की उम्र में भी उनकी जो एनर्जी थी, उस एनर्जी ने पूरा माहौल बदल के रख दिया। दादी, तुम हमें बहुत याद आती हो। ऐसा लगता है मधुबन के आंगन में तुम आज भी मुस्कुरा रही हो। इतनी ऊंची नजर से देखा, हमें आत्मविश्वास जगा दिया। परमात्मा का परिचय देकर आत्माओं को संवार दिया। रूहानी दृष्टि से निहाल करके जन्नत का नजारा दिखा दिया। कैसे करे शुक्रिया तुम्हारा दादी। तुम हमें बहुत याद आती हो। ऐसा लगता है मधुबन के आंगन में तुम आज भी मुस्कुराती हो। एक नन्हे से बीज को स्नेह की पालना दी, नया जीवन देकर उमंग की किरणें बिखरा दी। जीवन के सख्त राहों में दुआओं की शीतल बौछार दी। कैसे करे शुक्रिया तुम्हारा दादी। तुम हमें बहुत याद आती हो। ऐसा लगता है मधुबन के आंगन में तुम आज भी मुस्कुरा रही हो। निगाहें जिसमें सबके लिए प्यार बसता था, हौसला जो हर दिल में प्रेरणा भर देता था, त्याग तपस्या की तुम ऐसी मूरत जिसके दर्शन से रूहों में बल भर जाता था। कैसे करे शुक्रिया तुम्हारा दादी। तुम हमें बहुत याद आती हो। ऐसा लगता है मधुबन के आंगन में
तुम आज भी मुस्कुरा रही हो। संगम युग में साथ तुम्हारा बना यादों का अनमोल खजाना, कभी नहीं भूलेंगी मैं कौन मेरा कौन की शिक्षाएं तुम्हारी। तुम हमेशा कहती सच्चे दिल पर साहेब राजी। कैसे करे शुक्रिया तुम्हारा दादी, तुम हमें बहुत याद आती हो। ऐसा लगता है मधुबन के आंगन में तुम आज भी मुस्कुरा रही हो। ओम शांति का महामंत्र देश विदेश में गूंज उठा। तुम्हारे कदम जहां पड़े आत्माओं का भाग्य जाग उठा। बाप दादा की अनमोल रतन फरिश्तों की दुनिया तुम्हारी रोशनी से और भी जगमगा उठा। दादी, तुम हमें बहुत याद आती हो। ऐसा लगता है मधुबन के आंगन में तुम आज भी मुस्कुरा रही हो। तुम आज भी मुस्कुरा रही हो।